Hello students, welcome to my channel. Today we are going to discuss one more topic from the class 12th, chapter number 1, sexual reproduction in flowering plants. लास्ट वीडियोस में हमने क्या क्या पढ़ा है? लास्ट वीडियो में हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा था एंड देन वी हैव डिस्कस द मेल पार्ट. इन मेल पार्ट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इन फीमेल पार्ट मेगास्पोरोजेनेसिस, ये सब पढ़ चुके हैं लास्ट प्रीवियस वीडियो. आप जाके चेक कर सकते हो. और इस वाले वीडियो में क्या पढ़ने वाला है? इस वाले वीडियो में पॉलिनेशन पढ़ने वाला है. ठीक है, बिकॉज वंस द थिंग्स आर मैच्योर, ओव्यूल मैच्योर हो गया, पोलन एंथर मैच्योर हो गया, ओव्यूल में एग सेल बन चुकी है, पोलन बन चुके हैं एंथर में, मतलब अब मैच्योरिटी वाला फेज है. नाउ व्हाट नेक्स्ट? तो इन द नेक्स्ट थिंग one event is there in the plant that is called pollination. Okay, let's talk about these all things. This is the name of the chapter. We are talking about the sexual reproduction. Two parents are there, one is male, another is female. In plants, endoecium is a male part, gynoecium is a female part. Endoecium is made up of stamen and stamen is made up of two things, anther and filament. So here we are talking about the anther. Anther have one process. That process is called, what that process is called? Microsporogenesis. And because of that process, these anthers have pollens. Okay, and female, that part is called gynoecium part, and gynoecium is made up of carpel, and carpel have one of the structure is ovary. Inside the ovary there is a ovule, and this ovule is not mature, and by having that process, that plants will have that process. In the ovary that process will be there, in ovule that process will be there, and that ovule will get mature, and then this ovule will have egg cell and few more cells will be there. Okay, in previous video you can see that. Now these two things are there, they are mature enough. Now what is the next process? In the next process, pollens will move from the anther to the stigma. पोलन यहाँ से कहाँ चले जाएंगे? यहाँ जाएंगे. उस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? पॉलिनेशन है. उस पॉलिनेशन की डेफिनेशन में यहाँ पे लिखी, क्या लिखना है? ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा. उस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? पॉलिनेशन प्रोसेस बोल रहे हैं. अब क्वेश्चन ये है कि पॉलिनेशन ट्रांसफर, ये पोलन ट्रांसफर कैसे होता है? ट्रांसफर होने का यहाँ पे क्या होता है? एजेंट्स होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ वेज थ्रू विच plants transfer their pollens. If plants are using wind to transfer pollens from this side to that side, water वाले plants है like Zoostra, Hydrilla, Vallisneria, ये कुछ plants हैं. इन plants में water के through क्या होता है? Pollens transfer. Water is a medium through which pollens are transferred. और insect है तो insect तो 80% of the pollination is takes place because of the insect. ठीक है, तो ये insect क्या करते हैं? वो फ्लावर पे अट्रैक्ट होता है बिकॉज ऑफ द ब्राइट कलर ऑफ पेटल्स, और वो अट्रैक्ट होके उस फ्लावर पे घूमते हैं सो दैट दे कैन गेट द नेक्टर, स्वीट जूस जो वहाँ से मिलता है. वो वहाँ से स्वीट जूस के लिए उसके ऊपर घूमते हैं, तो उसकी वजह से उनकी बॉडी पे पोलन स्टिक हो जाते हैं. फिर वो सेम फ्लावर पे भी गिर सकते हैं, डिफरेंट फ्लावर पे भी गिर सकते हैं. ठीक है, तो वो दिस इज हाउ पॉलिनेशन इज टेक्स प्लेस. नाउ द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनेशन इज, यू कैन सी. नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप ऑफ पॉलिनेशन. There are two type of pollination. One is called self pollination. Second is called cross pollination. Only one type is there in the cross pollination, that is xenogamy. And self pollination have two types. One is autogamy and second is geitonogamy. Autogamy and geitonogamy. In autogamy, what is going on? Suppose this is the same one flower. Okay, this is one plant, one flower. Here you can see in the one flower, both male and female parts are there. In this flower, you can see male part is also there, female part is also there. So that male part, from the male part, pollens will be shifted to they are moving to the female part, stigma. That is called stigma. This part is called stigma. So they have shifted here. Here you can see, and that type of pollination is called autogamy. In autogamy, what we will write? Transfer of pollen from anther to the stigma in same flower. In same flower we need to write in this. Rest definition is same. Okay.
एंड इन गिटोनोगेमी, अब मान लो ऑटोगेमी के बारे में लिखना है तो क्या लिखोगे, यही वाली लाइन लिखनी है, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इन सेम फ्लावर, दैट इज कॉल्ड ऑटोगेमी, एंड ऑटोगेमी इज वन ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन टाइप्स। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द गिटोनोगेमी, तो इन गिटोनोगेमी में क्या हो रहा है देख लो, जैसे ये प्लांट है और प्लांट में मान लो ये अलग अलग ब्रांचेस हैं और यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर्स हैं, ठीक है, प्लांट तो एक ही है ना, ठीक है, प्लांट एक ही है, तो यहाँ से क्या हुआ, मेल वाले पार्ट से फीमेल वाले पार्ट पे क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, मान लो पोलन्स यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए, ठीक है, पोलन्स यहाँ से यहाँ चले गए और यहाँ से यहाँ पोलन जा रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ पोलन तो हुआ है, एंथर से स्टिग्मा पे हुआ है, बट ये डिफरेंट फ्लावर्स है एंड अब डिफरेंट फ्लावर्स को तो क्रॉस में डालना चाहिए, बट इसको सेम सेल्फ पॉलिनेशन में क्यों रख रहे हैं, उसका एक रीजन है, बिकॉज दिस बोथ फ्लावर्स बिलोंग्स टू द वन प्लांट, दे बिलोंग्स टू द वन प्लांट, इसीलिए उनको क्या रख रहे हैं अपन सेल्फ में, बिकॉज जेनेटिकली दे आर सिमिलर, genetically they are similar, they have similar genes, that is why, and they belongs to the one plant, that is why they are the type of self pollination. This pollination will be the type of self pollination and the name of the pollination is type of, that is geitonogamy, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है सीबीएसई में से क्वेश्चन पूछते हैं कि one plant have two flowers and between there is a pollination and why we are not calling it cross pollination, why, because this in geitonogamy two flowers are there, that is correct, but these two flowers belongs to the one plant, that means they have similar genes, and when the genes are similar we cannot place them in one category, you know, in cross one we cannot place this, okay, we need to place it in a cell, क्योंकि दोनों के जीन्स सेम है, एक ही प्लांट से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। इसमें प्लांट अलग कर लोगे, ठीक है, जीनोगेमी में क्या हो जाएंगे, दोनों प्लांट्स अलग होंगे, ये दोनों प्लांट्स मैं अलग बना देता हूँ और ये दोनों प्लांट्स अलग होंगे एंड फ्लावर्स भी अलग होंगे फिर तो, ठीक है, फ्लावर्स भी अलग है। अब क्या होगा, ये मेल फ्लावर, ये फीमेल फ्लावर, तो यहाँ से पोलन्स क्या हो रहे हैं, पोलन्स यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, पोलन्स आर शिफ्टिंग फ्रॉम दिस प्लेस टू देयर। नाउ इन दिस व्हाट इज गोइंग ऑन, यू नो, इन दिस different flower but same plant, different flower but same plant, we need to know. So listen what we will write in the geitonogamy, transfer of pollen from anther to the stigma in different flower but in same plant, okay, this is how we need to write। इसमें क्या हो रहा है देखो, इसमें डिफरेंट प्लांट है ही है तो डिफरेंट फ्लावर तो होना ही है, बट इन ये दोनों स्पीसीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, सेम स्पीसीज, मतलब स्पीसीज का मतलब ये कि अगर ये पी प्लांट है तो ये भी पी प्लांट होना चाहिए, और जब ये दोनों पी प्लांट है और यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है, मान लो ये पपाया प्लांट है, पपाया का मेल प्लांट है और ये पपाया का फीमेल वाला प्लांट है, तो अगर यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, दोनों पपाया प्लांट है, तो देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन होगा, और ऐसे पॉलिनेशन को क्या बोलोगे आप, क्रॉस पॉलिनेशन, एंड दिस इज कॉल्ड जीनोगेमी, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इन डिफरेंट प्लांट्स बट स्पीसीज शुड बी सेम, ओके, एंड दिस इज हाउ वी नीड टू राइट। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे ऑक्जेलिस है, कॉमेलिना है, ये प्लांट्स क्या करते हैं देखो, जैसे ये एक ऑक्जेलिस प्लांट है, ठीक है, या फिर कॉमेलिना प्लांट है, ठीक है, कॉमेलिना, इन प्लांट्स में क्या होता है, ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना प्लांट में क्या होता है, ठीक है, इनमें दो अलग अलग टाइप के फ्लावर्स ग्रो होते हैं उनके ब्रांचेस पे, एक होता है चास्मोगैमस और एक होते हैं क्लिस्टोगैमस, चास्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस अलग अलग टाइप के फ्लावर्स होते हैं। चास्मोगैमस नॉर्मल टाइप के फ्लावर्स वेयर ऑल द थिंग्स एक्सपोज्ड इन एयर, मतलब एंथर है और स्टिग्मा है, ये दोनों चीजें एयर में एक्सपोज होती है जैसे नॉर्मल फ्लावर में होती है, एंड दिस इज कॉल्ड चास्मोगैमस फ्लावर
एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होता है? दी फ्लावर्स आर नेवर ओपन, ठीक है, वो ओपन ही नहीं होता है, ठीक है, वो ओपन ही नहीं होता है, वो बंद ही रहता है हमेशा, नेवर ओपन, ठीक है। जब वो खुलते ही नहीं है और जब फ्लावर खुलेंगे नहीं तो उनमें किस टाइप का पॉलिनेशन होगा, कैसे पॉलिनेशन होने के चांसेस है? उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ठीक है। इस वाले में क्या चांस है? इसमें सेल्फ भी हो सकता है और साथ में क्या हो सकता है? क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। एग्जाम्पल याद रखना, ऑक्जेलिस, कॉमेलिना, ये कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके पास क्या होता है, दोनों अलग अलग टाइप के फ्लावर्स होते हैं। कुछ फ्लावर्स नॉर्मल फ्लावर्स होते हैं जो ऐसे एक्सपोज होते हैं, जैसे नॉर्मल एंथर और स्टिग्मा एयर के अंदर एक्सपोज होते हैं, तो इजीली सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। बट क्लिस्टोगैमस में क्या होता है, ये कभी खुलते ही नहीं है। और जब मेल और फीमेल पार्ट जब मैच्योर होते हैं तो उनमें और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, ठीक है। और इसमें एक चीज और ऐड ऑन कर देता हूं मैं, we will get assured seed set in this, क्योंकि इनमें कोई पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं होती है, पॉलिनेशन करने वाले एजेंट्स की जरूरत नहीं होती है, किसी पे डिपेंड नहीं है, विंड वाटर इंसेक्ट किसी पे डिपेंड नहीं, क्योंकि फ्लावर खुलता ही नहीं है, जब ओपन ही नहीं होता है फ्लावर तो ये किसी भी एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पे डिपेंड नहीं करता है। दैट मीन्स आप मैच्योरिटी अंदर आएगी मेल एंड फीमेल में, अंदर ही फ्लावर में, और वो अपने आप पॉलिनेशन, अपने आप फ्रूट, सब कुछ सीड वगैरह सब कुछ बन जाएगा, तो ये तो पक्का है। पर ये जो डिपेंड होता है ये किस पे डिपेंड रहते हैं? एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये पूरा पॉलिनेशन वाला टॉपिक तुम्हारे बुक में दे रखा है, आपके बुक में दे रखा है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि पॉलिनेशन जब आप पढ़ो तो पॉलिनेशन की डेफिनेशन आए आपको, उसके टाइप्स आ जाए, और ये चार्समोगेमस, क्लिस्टोगेमस, दे आर आस्किंग मोस्ट ऑफ द टाइम दिस क्लिस्टोगेमस, ओके, तो कुछ इस क्लिस्टोगेमस के बारे में वो पूछते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, and for that type of video I will bring more topics, okay, thank you।